We are lucky to have you, Mr. Daksh, with us today for a session on LinkedIn. So let's welcome our guest. And now I hand over mic to you, Mr. Daksh. Good evening, everybody. Thank you, Ankita ji. Thank you so much for having this session organized. The need of the hour, and I'm glad that we were able to come to terms with a good session on a very important topic, something that I think everybody should be aware of, irrespective of your age, background, your profession, irrespective of all these points. I think everybody should be aware of the fact that LinkedIn is the need of the hour. Once again, thank you, Pooja ji, for having this organized. Thank you for that sweet introduction as well. Ankita ji, I'm really happy to be back at DAV Centenary College. I see a lot of students here, but I just see their names, their roll numbers, and their profile pictures, which is not the way we will be moving forward into this. So I need all these students to turn their cameras on as soon as possible so that we can have a better look at everybody. We are from different parts of the country. I'm from Gurgaon. Most of you would be from Faridabad. There are some people who are even outside Haryana. So I'm pretty sure that we are from different parts of the country. And it's very important that we maintain the human touch. I see a few familiar faces. Definitely Nilesh, Shyam. I see a lot of familiar faces. Great. Sagar. All right. Very quickly. Can Deepali. All right. Can we have all the cameras on very quickly? Great. This makes it all the more interactive and engaging. All right, great. Nidhi, Prince, hi. Kishan, Hemant, Avi, great. Simran, Kunal, Shivani, Diti, Milan, Tanuj, Shivam, great. Can we have all the other students to turn the cameras on as well? बहुत सारे students आए हैं यहाँ पे आज, and I'm really happy that a lot of students have participated in this. Very quickly. All right, before I move into the session, there are two rules that we will be following in this session. Rule number one is ask questions. Ask as many questions as you can. Ask as many questions as you want to. Rule number two will be to keep your cameras on because it's important that we maintain the human touch, right? We'll make it all the more interactive. हालांकि आप अपने आप को unmute नहीं कर पाएंगे, लेकिन chat box आपके लिए है. You are free to drop in a message if at all you have any questions. I can see the chat box right here, so your questions will not go unanswered. All right. We will be talking about LinkedIn. Now, LinkedIn is not a boring platform. It is not for old blokes to find jobs. ये एक ऐसा platform नहीं है जहाँ पे आप सिर्फ नौकरियां ढूंढते हो या इंटर्नशिप ढूंढते हो. वो इसका हिस्सा है, उसका एक पार्ट है. लेकिन LinkedIn पे as students, as BBA students, as BCom students, as computer science students, as psychology honors students, as engineering students, as MBA students, everybody has to be on LinkedIn today. It is not just for jobs. Point number one. Point number two, यहाँ पे ऐसे बहुत students होंगे जो पढ़ाई के अलावा भी कुछ काम कर रहे हैं. या तो वो अपने फैमिली बिजनेस में हाथ बटा रहे हैं, या तो वो खुद का स्टार्टअप सोच रहे हैं, या तो फ्रीलांसिंग, सम फॉर्म ऑफ फ्रीलांसिंग को एज अ करियर अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं. All these aspects will be covered on this platform called LinkedIn. LinkedIn की अहमियत लास्ट ईयर हमें देखने को मिली during the first lockdown. When the first lockdown came into effect, there were a lot of job losses. There were a lot of people who lost their jobs, who lost some form of employment. But it also gave an opportunity for a lot of freelancers, a lot of startups to come in. And they all made the use of LinkedIn. It is not a boring platform for 45, 50, 60-year-old blokes to look for jobs and discuss politics. वो एक ऐसा platform है ही नहीं. तो ये एक जो गलत फहमी में हम जी रहे हैं कि LinkedIn is a very boring platform या उस पर क्या किया जाता है हमें समझ नहीं आता, सिर्फ नौकरियों के लिए है. सबसे पहले तो मैं आपका ये भ्रम तोड़ूंगा. यहाँ पे लोग एक पर्सनल ब्रांड डेवलप करते हैं. This personal brand will help you to connect with the right people, whether your client or the right customer. And this is something that you can connect through as a freelancer or as somebody who wants to start their own business. तो कल को अगर आप अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं या आपके पास एक ऑनलाइन बिजनेस है जो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, LinkedIn will help you. अगर आप अपने फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं, LinkedIn will help you. अगर आप इंटर्नशिप चाहते हैं, LinkedIn will help you. अगर आप फाइनली एक जॉब प्लेसमेंट चाहते हैं, LinkedIn will definitely help you. लेकिन किस तरीके से वो मैं आपको बताऊंगा.
It is not like a naukri.com. It is not like a shine.com or a jobs.in or something like a monster.com. ये एक बहुत ही different platform है. सबके 3 sides होते हैं. There are 3 personalities to every individual. The first side of your personality is going to be your personal life. हम जो personally अपने family के साथ भी होते हैं, हमारे close friends के साथ होते हैं, we are in a different way. We interact with them in a different manner. हमारा जो सेकंड साइड होता है वो होता है सोशल साइड, जो हमारी सोशल लाइफ होती है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो सोशल लाइफ हम दिखाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. इंस्टाग्राम पे सब हैं, फेसबुक पे सब हैं, स्नैपचैट पे कुछ लोग हैं, ट्विटर पे कुछ लोग हैं, राइट? दीज आर द प्लेटफॉर्म दैट वी यूज फॉर आवर सोशल लाइफ. देन देयर इज अ थर्ड साइड, इट इज कॉल्ड अ प्रोफेशनल लाइफ. चाहे आप अपने फैमिली बिजनेस को रन कर रहे हैं, चाहे आप अपना खुद का स्टार्टअप रन करना चाहते हैं, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, हायर एजुकेशन को देख रहे हैं, या नौकरी चाहते हैं, इंटर्नशिप चाहते हैं, दैट इज योर प्रोफेशनल लाइफ. उस प्रोफेशनल लाइफ को हमें दिखाना है लिंक्डइन पे. दिस प्लेटफॉर्म लिंक्डइन इज फॉर योर प्रोफेशनल साइड. हम अगर कहीं बाहर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो हम इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं. कहीं खाने गए हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में गए हैं, डेफिनेटली वो स्टोरी पे जाएगा, लोकेशन के साथ जाएगा. हम किसके साथ जा रहे हैं उसका टैग होगा उसके अंदर, @ करके टैग जरूर करेंगे. लेकिन क्या वही चीज आप लिंक्डइन पे करोगे? नहीं. आपने कल को एक इंटर्नशिप में एनरोल किया, आप वहां पे काम कर रहे हैं, आप एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए, आप एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स आपने कंप्लीट किया है, क्या आप उसको इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डालोगे? शायद नहीं डालोगे, बिल्कुल नहीं डालोगे. उसको आप कहां डालोगे? लिंक्डइन पे. लेट मी टेल यू, टाइम्स आर टफ. जॉब मार्केट बहुत खराब है इस टाइम पे. जो कैंपस प्लेसमेंट्स में जो कंपनीज आती हैं, अगर पहले प्री पैंडेमिक 2019 में अगर उन्होंने लेट से 100 स्टूडेंट्स को हायर किया, आज वो शायद से 20 या 25 स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं. इतना बुरा हाल है. लेकिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिमेन द सेम. आपका बैच का साइज तो छोटा नहीं हुआ. डिमांड उतनी की उतनी है, सप्लाई रिड्यूस हो गई है. And this is something that you will have to understand, that the competition is getting tough. So finding employment is now going to be a task. Campus placement आपको placement opportunity दे सकता है, लेकिन placement guarantee नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, किसी भी कॉलेज में नहीं होता. I've conducted sessions in tier 1, tier 2, tier 3 colleges. In all these colleges, no placement cell guarantees a placement. Never. हो ही नहीं सकता. So you are actually responsible for yourself. जितनी जल्दी आप ये बात समझ लोगे, उतना आसान होगा आपके लिए नौकरी लेना. मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ. I am not coming here as a faculty of DAV. I am not coming here as an ex-faculty of DAV. I am not coming here as a trainer, as somebody from the employees, from the faculty side. I am coming here as an outsider. मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है. मैं चाहता हूँ कि आपको रियल पिक्चर दिखे, हकीकत दिखे. हकीकत ये है, आपको अपने ऊपर काम करना है. आपको लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी. एक टियर 1, टियर 2, टियर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स लिंक्डइन पे हैं. क्या काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं. दे आर बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड, दे आर फाइंडिंग जॉब, दे आर फाइंडिंग इंटर्नशिप्स, दे आर पोस्टिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, दे आर डेवलपिंग देयर नीश, दे आर लॉन्चिंग देयर ओन स्टार्टअप्स, दे आर कनेक्टिंग विद द राइट काइंड ऑफ पीपल, दे आर जनरेटिंग इनकम, दे आर कैरिंग देयर फैमिली बिजनेसेस फॉरवर्ड. ये मेरे आंखों के सामने होते हुए देखा है. Right? Having said that, this is just to set the pace, set the tempo of LinkedIn. How many students here or how many attendees here are on LinkedIn? Let's just keep it that way. एक नीचे एक इमोजी का आइकॉन आता है, एक रिएक्शन का नाम आता है. So आप उसमें thumbs up दे सकते हैं या हाथ रेज कर सकते हैं. All right, I see a lot of people. Also, I would request everybody to keep their cameras on very quickly. Rule number 2. Okay, काफी लोग हैं LinkedIn पे. That's good. That's good. That's good. That's good. So I can see about, okay, so 5, 8, 16, about 20 people out of 80, 25%. Yeah, about 20, चलो 25 हो गया सुन के. चलो, still about, 30%, 30 to 35%, right? अब ये, क्योंकि आप LinkedIn पे हो, आपको पता होगा कि LinkedIn पे exactly होता कैसे है, शायद नहीं. आपको नहीं पता होगा. हम लिंक्डइन में प्रोफाइल जरूर बना देते हैं, लेकिन हमें लिंक्डइन पे करना क्या, हमें नहीं पता. आई कैन सी अ फ्यू स्माइल्स, राइट? हमने लिंक्डइन प्रोफाइल तो बना दी, लेकिन लिंक्डइन पे करना क्या है वो तो किसी ने बताया नहीं हमें.
इंस्टाग्राम पे क्या करना है वो आप हमसे सीख लो। तो बात ये है कि लिंक्डइन पे हमें क्या करना है, दिस इज व्हाट आई एम हियर टू टॉक अबाउट। सबसे पहले आप ये बात भी जान लीजिए, इस सेशन के बाद एंड अगले 5 महीने के बाद अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई, और अगर आपका जवाब है नहीं सर हमने नहीं बनाई, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। एज अ कॉलेज स्टूडेंट अगर आप ये स्टैंड लेंगे तो फिर आई एम सॉरी बट यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ थिंग्स, यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द कॉम्पिटिशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अब आप लिंक्डइन पे आएंगे, लिंक्डइन पे लेट से आपने प्रोफाइल बनाई, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। ईमेल आईडी आपका लगता है जैसे आप इंस्टाग्राम की प्रोफाइल बनाते हो उसी तरीके से आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हो। जिस तरीके से आप लिंक्डइन इंस्टाग्राम पे एक प्रोफाइल पिक्चर लगाते हो उसी तरीके से आप लिंक्डइन पे भी डालोगे, लेकिन आप उसको एज अ प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाओगे, प्रोफेशनल। सो जिस तरीके से आप अपना इंटरव्यू देते हो, यू सूट अप, सो योर प्रोफाइल पिक्चर हैज टू बी इन अ फॉर्मल वे, इन अ फॉर्मल मैनर। देयर इज समथिंग कॉल्ड कवर फोटोग्राफ। अक्सर हमें पता है कि हमें फेसबुक पे तो पता है कि हमें कवर फोटोग्राफ क्या लगाना है, लेकिन लिंक्डइन पे क्या कवर फोटोग्राफ लगाना है कोई नहीं बताता। मैं बता देता हूँ, 2-3 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहली चीज तो आपके पास लिंक्डइन पे ये है कि आप अपने कॉलेज का ही नाम लगा सकते हो। सो यू क्रिएट एन इमेज, उसके डायमेंशंस आपको भी मिल जाएंगे, 1700x400 पिक्सल्स का होता है। आपने वहां पे एक कवर फोटोग्राफ बनाई, उसको अच्छे से आपने अपने कॉलेज का गेट भी लगा सकते हो, कॉलेज की फोटोग्राफ लगा सकते हो। इट जस्ट शोज व्हाट यू रिप्रेजेंट एंड वेयर यू कम फ्रॉम। आपने वो कवर फोटोग्राफ बनाया एंड आपने उस पर लगाया। द सेकंड थिंग दैट यू कैन डू इज पुट अ कोट। अक्सर लोग करते हैं एक कोट अच्छा सा लगा देते हैं। somebody coming on to your प्रोफाइल एक अच्छा सा कोट देखेंगे, अच्छा लगेगा, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, एक पॉजिटिव वाइब आती है। एवरीबडी लाइक्स पॉजिटिव कोट्स, डोंट दे? सो एक पॉजिटिव कोट आपने लगाया। अगर आप एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, सो देन आप अपनी पिक्चर के साथ ये बता सकते हैं कि आप हो कौन, आपने क्या, आपकी स्पेशलिटी क्या है, क्या आपके पास खुद का स्टार्टअप है, स्टार्टअप का नाम लिख सकते हैं। What is your niche? What is your area of expertise? Is it into fashion? Is it into online teaching? Is it into training? Is it into freelancing? क्या आप एक वेब डेवलपर हैं? क्या आप एक डिजिटल मार्केटर हैं? क्या आप एक UI UX डिजाइनर हैं? वो आपकी स्पेशलिटी क्या है? Are you an aspiring CA, an aspiring CS? लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो आपका कवर फोटोग्राफ आपको रिप्रेजेंट करता है। रिमेंबर, सबसे पहले कवर फोटोग्राफ आता है, उसके बाद आपकी प्रोफाइल पिक्चर दिखती है, आपका नाम दिखता है। ऑफ कोर्स हम नाम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नाम के बाद आएगा आपका हेडलाइन। फॉर दोज ऑफ यू हु आर ऑन लिंक्डइन वुड नो व्हाट अ हेडलाइन इज, बट फॉर दोज ऑफ यू हु आर नॉट ऑन लिंक्डइन, लेट मी टेल यू, अ हेडलाइन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ वर्ड्स। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगा आपको कि एग्जैक्टली आपका लिंक्डइन प्रोफाइल कैसा दिखना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आई विल शो इट टू यू। बट फॉर द टाइम बीइंग, योर लिंक्डइन, योर हेडलाइन इज बेसिकली अ सेट ऑफ वर्ड्स which define you. Who are you in a limited number of words? Keywords क्या हैं आपके बारे में? Keywords क्या हैं? All right, I can see विशाल कुमार here. ठीक है जी, मैं आपकी प्रोफाइल देख सकता हूँ इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूँ, डो नॉट वरी। अब विशाल कुमार हैं यहाँ पे। विशाल, आयु कुछ आप मेरे अपने बारे में बताओ मुझे। Just tell me something. Which course are you in? आप कहाँ से हो? आप Are you pursuing any certification program? Are you considering anything else? I know, ma'am, is it possible for us to make him the co-host for a minute? फिर हम उनको हटा देंगे co-host से, because I would actually want to listen to him. बात बन नहीं पाएगी. Good evening, sir. Good evening, Vishal. How are you? So I'm fine, sir. Great. बताइए. So I'm Vishal Kumar and I'm pursuing BBA CAM from DAV Centenary College, and I like to draw paintings and teach students in free time. Oh wow. And apart from these things, I had worked with an NGO that used to collect different products and distribute in different areas, in slum areas. Okay. Are you pursuing any certificate? What in terms of your career do you want to achieve? What do you want to get into? So I want to be in teaching line and somewhere in corporate sector. What sector? Corporate sector. Yes, sir. नहीं, बट व्हाट काइंड ऑफ टीचिंग? कोई एक फील्ड है आपका? किस फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हो? कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो, स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो, अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हो, किसको पढ़ाना चाहते हो? In college students, sir. But what is your subject? किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हो आप? In economics, sir.
Economics. All right. Now these are keywords, right? Aspiring professor or aspiring academician. Economics. Painter. Painter थे आप you draw or you paint? You paint और okay वो पीछे दिख भी रहा है हमें. Very good. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये. So painter, right? Part-time painter or a passionate painter, and you like to also spend time with children. आप पढ़ाते हो. अभी आप किस लेवल स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को पढ़ा रहे हो भैया? थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो. All right, great. So now these are a few keywords, right? These are a few keywords. Now when Vishal Kumar makes his LinkedIn profile, नाम तो आपका वही रहेगा, आपकी प्रोफाइल पिक्चर थोड़ी प्रोफेशनल रहेगी, थोड़ी फॉर्मल रहेगी. कवर फोटोग्राफ में आप अपनी पेंटिंग डाल सकते हो, आप एक कोट डाल सकते हो जो ये डिफाइन कर सकता है कि आप एक एकेडमिशियन बनना चाहते हो. यू वांट टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ टीचिंग और समथिंग टू डू विद द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स. कोई एक कोट जो इकोनॉमिक्स का इंटरेस्ट आपका डिफाइन करता है, वो चीज भी आप उठा सकते हो. अब जब आप ना हेडलाइन बनाएंगे, विशाल कहाँ गए? ऑलराइट, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल टर्निंग द कैमरास ऑफ. डोंट वरी, और मैं किसी का भी नाम कॉल आउट नहीं करने वाला हूं. सारे सवाल मेरे खत्म हो चुके हैं. यू कैन टर्न योर कैमरास बैक ऑन, डू नॉट वरी अबाउट इट. कैन आई हैव ऑल द कैमरास ऑन वेरी क्विकली? कईयों के तो मुझे नाम भी पता है, सो फिर वो अननोटिस भी नहीं जाने वाले हैं. वेरी क्विकली, वेरी क्विकली. ऑलराइट, सो नाउ विशाल, व्हेन यू मेक योर हेडलाइन, अब आप हेडलाइन में क्या क्या कुछ कीवर्ड्स लिखेंगे? Aspiring painter, aspiring academician, upcoming academician, a keen economist. This is something that you can write. So आपकी headline में ये keywords define हो जाएंगे. You are currently studying BBA CAM, so pursuing BBA CAM, or student at DAV Centenary College. So ये कुछ keywords आपके LinkedIn profile पे आएंगे. कहाँ पे आएंगे, किस तरीके से आप लिखोगे, मैं तुम्हें बताऊंगा. लेकिन I just want everybody, all of you, the remaining 86 of you, 80 of you, to visualize कि वो keywords आपके लिए क्या हैं. अगर विशाल के लिए ये keywords हैं, तो वो आपके लिए keywords क्या हैं, मैं भी आपको डिफाइन करके बताऊं. ठीक है जी. उसके बाद आएगा आपका about section. About section, क्या सबने about section देखा है? LinkedIn पे देखा ही होगा, राइट? हम क्या लिखते हैं about section में? हरगोविंद सिन्हा, हरगोविंद जी आप हैं यहाँ पे, सिन्हा नहीं, सिंह है यहाँ पे यार. हरगोविंद जी, what is your about section? What does it say? Ma'am, if you could just ask him to unmute as well. Hargovind. Yes, sir. Yeah. What exactly is your about section? What does it say? Sir, the about section in my LinkedIn profile contains who I am and what I want to do, what is my ambitions. Could you just read it out? Wait, sir. Surely. कोई बात नहीं, don't worry about them. Actually सर थोड़ा टाइम लग रहा है. वेट, मैं अपने अबाउट सेक्शन ओपन कर लेता हूँ. प्रोफाइल खोलेंगे, सामने अबाउट सेक्शन होगा. यस सर, यस. एक्चुअली सर आई एम अनेबल टू सी, बट मैंने जो अपना अबाउट सेक्शन में लिख रखा है वो ये लिखा है कि माय नेम इज गोविंद एंड आई एम अ BCA स्टूडेंट एंड द हैकिंग इन साइबर सिक्योरिटी इज द फील्ड वेयर आई वांट टू मेक माय करियर. Okay, समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है सर. fair enough. Fair enough. No, fair enough. Thank you for sharing that. Hargovind, आप हाँ म्यूट कर लीजिए. Great. Now there are a couple of things that I need you to understand. About section में आप 3000 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हो. 3000 characters. That's the length of your about section. Now there is a reason why LinkedIn allows you to write 3000 characters. 3000 characters, not words. अगर आप उसको वर्ड्स में डिफाइन करेंगे तो करीब 800 वर्ड का भी आप बना सकते हो.
राइट 700 से 800 वर्ड का बना सकते हो. नाउ दैट्स अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, बहुत लंबा बना सकते हो. लेकिन लिंक्डइन चाहता है कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डालो, वरना वो आपको एक इंस्टाग्राम बायो की तरह सिर्फ 150 कैरेक्टर्स देता. There is a reason why it's 3000 characters and not 150 characters. Why? Because it needs you to write 3000 characters or up to 3000 characters. There is an importance to it, right? There is a lot of weightage and value to it. Now, what is it that you will write in your about section? सबसे अगला सवाल यही आएगा कि सर आपने बता तो दिया कितने कैरेक्टर्स, लेकिन लिखना क्या है? Let's talk about what to write. Now, irrespective, this is for the faculty members as well. This is for anybody else joining in. This is for all the students. You have to first identify who you are and what your area of interest is. बाकी सारी चीजें ऑलरेडी आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखी होंगी कैटेगोरिकली, लेकिन अबाउट सेक्शन में हम अपने बारे में बता रहे हैं. So, if you are a college student studying in BBA CAM, let's say I'm just giving an example. So, Pursuing, आपका नाम ऊपर लिखा हुआ है, वापस नाम नहीं लिखेंगे, my name is. सबसे पहली चीज हम एक गलती और करते हैं, I am, हम लिखते हैं I am हरगोविंद सिंह, which is wrong. आप हरगोविंद सिंह नहीं हो, आपका नाम हरगोविंद सिंह है, राइट? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो, तो आप बोलोगे कि मैं हरगोविंद सिंह हूं, फिर मैं बोलूंगा कि नहीं वो आपका नाम है. फिर आप बोलोगे that I'm a boy, फिर मैं बोलूंगा नहीं वो आपका जेंडर है. फिर आप बोलोगे कि नहीं I am a human being, then I will say no, that is the species of on this planet, that is the species that you belong to. फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो एक्चुअली में आपका नाम हरगोविंद सिंह है, आप हरगोविंद सिंह नहीं हो, राइट? सो माय नेम इज हरगोविंद सिंह and I'm so you will not obviously write your name, but this is just an additional information that I was giving you. So I am pursuing BBA CAM from DV Centenary College. I have a keen interest in art. What form of art? Painting, probably sketching, probably stencils, probably calligraphy, depending upon what your interest is. I also carry a keen interest in the field of economics. Now, economics is a umbrella. उसमें 10 चीजें आती हैं. But which is that area of interest of yours specifically? Public policy, data management, data analysis. Are you talking about teaching? आप teaching के बारे में बात कर रहे हो? क्या आप research की तरफ बात कर रहे हो? आप किस field of interest की बात कर रहे हो? Macroeconomics, microeconomics. What is it that you're talking about? International relations. Economics is a vast concept. So you just cannot say that I'm interested in economics, but what is your area of interest? Now this goes for everybody. Supposing you are interested in the field of marketing. यहाँ पे हरगोविंद जी इकोनॉमिक्स में, आप मार्केटिंग में हो. What form of marketing? Digital marketing. Digital marketing 10 किस्म के होते हैं. Search engine optimization is one form of digital marketing. Social media marketing is Facebook, LinkedIn, Instagram combined. There is influencer marketing today. There is email marketing. There is SMS and WhatsApp marketing. Then there is something called an e-commerce marketing website. So there are multiple channels of digital marketing. So which is your area of interest? Okay, you could be good at all of them. You could have an interest in all of them, but then specify each and every one of them. अगर आप एक जेंडरिक किस्म की चीज लिखोगे, I am fond or I have an interest in digital marketing, it will not make sense to the recruiter you are applying to. Recruiter को ये चीज पता है कि डिजिटल मार्केटिंग एक छाता है, छाते के स्पोक्स होते हैं, ये हर एक कॉन्सेप्ट उसका एक स्पोक है. So be very specific. How do you be specific? In bullet points. आप bullet points में लिखेंगे कि exactly वो कौन से domains है, कौन सी area of interest है जो आपको excite करता है. Similarly, for the field of academia, supposing for all the faculty members, in case you are planning to read your LinkedIn profile, or you have a friend or a colleague who wants to do that, then you will be writing categorically which are those subjects that you have taught in the past, which is your area of interest. अगर आपने PhD करी, आपकी thesis का topic क्या था, which is your research area, what is it that you're good at, any professional certification course that you have done, जो specifically मुझे पता होना चाहिए आपके बारे में. वो तो हालांकि नीचे लिखा ही होगा, लेकिन आप चाहते हो कि ऊपर भी वो चीज पता रहे. Similarly with the college students, if you are looking at any digital marketing program that you have done, any certification program that you have done, which holds importance, which carries weightage, mention it there. अब इसको आप लिखोगे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन. इसका भी अंतर मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट पर्सन होता है कि जब मैं अपने बारे में लिख रहा हूं, तो जैसे अगर हरगोविंद सिंह जी लिख रहे हैं, उन्होंने लिखा कि आई एम परस्यूइंग, तो ये अपने बारे में लिख रहे हैं फर्स्ट पर्सन. जब मेरी प्रोफाइल आपने पढ़ी या आप मेरी जब प्रोफाइल देखोगे, वो थर्ड पर्सन में होगा कि कोई और किसी और को बता रहा है मेरे बारे में.
वो आ जाता है फील्ड ऑफ एकेडेमिया में. सो फॉर ऑल द फैकल्टी मेंबर्स it will be in third person. For all the professionals, if you have a personal brand, if you're looking at a startup, it will be in third person. If you're a freelancer, it will be in a third person context. He is. So एक मेरे context में आपको पढ़ाऊंगा Mr. Daksh Sethi is. कोई और किसी और से बात कर रहा है मेरे बारे में. That is what it means. First person मैं अपने बारे में ही बात करता हूँ. So this is the category. This is the difference between the two. Can I have all the cameras on very quickly? Very quickly. Jaldi se. All right. Any questions so far? Any questions before I move on to my LinkedIn profile and I show you a lot of things in detail now? Any questions? आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं. मैं आपको unmute का option दे दूंगा. Anybody? Very quickly. All right. Now let me open my LinkedIn profile. Let me know if you can see my screen. हाँ जी, screen दिख रही है मेरी? Thumbs up कोई दे पाएगा मुझे? I'm assuming that you can see my screen. Ma'am, I can't really figure out. All right, thumbs up. Great. ठीक है जी. Now if you can see visible, my screen. Sir. All Visible. right. Thank The you. screen is visible, sir. Oh, ma'am, thank you. All right. Now over here, this is going to be your profile picture. This is going to be a cover photograph that needs to be put. Now remember, अभी आप मेरे LinkedIn profile पे आए हो, लेकिन आपकी नजर सबसे पहले मेरी cover photograph पे गई होगी, profile picture से पहले. That's the chronology that you have to follow. आप chronology समझिए. Chronology पे ध्यान देंगे हम यहाँ पे. So cover photograph, you will then move on to your profile picture, professional, formal looking. What is it? How do you define yourself? Right? These are your this is your keywords. Now I can write it in one sentence and आप समझ जाओगे कि exactly मैं क्या करता हूँ. I help people crack their job interviews. Simple. I'm an educator. I'm a visiting faculty. I'm a soft skills trainer. I'm a branding consultant. And I have my own startup called Gooby Rogers. So I'm a founder at Gooby Rogers. अगर यही चीज मुझे एज अ स्टूडेंट लिखना होता, जो हम विशाल कुमार के एग्जाम्पल में देख रहे थे, हम यही देखेंगे कि आई एम एन एस्पायरिंग पेंटर और एन एस्पायरिंग इकोनॉमिस्ट. You will then write student at DAV Centenary College. Then you will write simple BBA CAM, second year or first year, third year. उसके बीच में आप इस लाइन का उपयोग कर सकते हो. This is a vertical line. This is not a capital I. This is a vertical line. ये आपको अपने कीबोर्ड में मिल जाएगी. उसके बाद आपका ये एक हेडलाइन तैयार हो जाएगा. Now anybody coming onto your LinkedIn profile, remember अभी मैं जॉब्स के बारे में बात करूंगा, अभी मैं आपके इंटर्नशिप्स पे आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी बात करूंगा. Anybody opening your LinkedIn profile will now look at this. आप देख रहे हो नाम के नीचे बिल्कुल ये चीज दिख रही है. अभी तो हमने अबाउट सेक्शन को देखा ही नहीं है, अभी तो हमने प्रोफाइल को देखा नहीं है, एजुकेशन, बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, रिकमेंडेशंस, किसी के बारे में अभी तो बात भी नहीं करी हमने. लेकिन अभी हमारे इस सेक्शन से हमें पता चल जाएगा कि हम में कितना दम है. सिंपल. So this has to be solid. Understood? You will then move on to your about section. अभी आपका about section है. Now this is from a personal brand's perspective, but this categorically explains who I am and what I do. This has been done in the third person. This is a third person context. इसका form of writing is third person. ठीक है जी. Mr. Daksh Sethi. थर्ड बंदा कोई किसी के बारे में, किसी से बात कर रहा है मेरे बारे में. दिस इज द थर्ड पर्सन कॉन्टेक्स्ट आई टॉक अबाउट. नाउ ओवर हियर दिस इज गोइंग टू बी इन योर कॉन्टेक्स्ट. आप अपने बारे में बात करेंगे दैट आई एम करंटली परस्यूइंग दिस. इफ यू आर एन एकेडमिशियन, इफ यू आर विलिंग टू राइट डाउन योर सब्जेक्ट, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपके जो की सब्जेक्ट्स हैं, आप उनके बारे में यहाँ पे बुलेट पॉइंट में लिखेंगे. these are the bullet points that you will be writing it in. मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको डिस्कस करिए, आप इसको लिखिए, ड्राफ्ट इट आउट. मैं आपको एक एग्जाम्पल नहीं दिखा सकता. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो आप उसी के फॉर्मेट में उस चीज को लिख देंगे, आप उसी के वर्ड्स को उठा लेंगे, क्योंकि प्रोफाइल बिल्डिंग मुश्किल काम है. सो आई डोंट वांट यू टू टेक एंड बेसिकली कॉपी पेस्ट अ फॉर्मेट. आप पहले समझिए कि एग्जैक्टली उस चीज को अपने हिसाब से क्या लिखना है. राइट डाउन योर कीवर्ड्स, एक्सप्लेन योरसेल्फ, एक्सप्लेन योर स्टोरी टू एवरीबॉडी एंड देन राइट इट डाउन.
उसके ऊपर फिर आप एक बार ड्राफ्ट करोगे, उसके बाद आप एक बार उसको रिविजिट करोगे एंड योर अबाउट सेक्शन विल बी रेडी इन नॉट मोर देन 30 to 40 मिनट्स। बट ये बहुत जरूरी चीज है। You then move on to your experience. अब एक्सपीरियंस हमारे 2-3 किस्म की चीजें होती हैं। अगर मैं इंटर्नशिप जॉब पर्सपेक्टिव से बात करूंगा तो एक्सपीरियंस आपके 3 किस्म के होने वाले। एक होगा जॉब एक्सपीरियंस। क्या आप कहीं नौकरी कर रहे हो अभी? शायद नहीं, अभी आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो। लेकिन क्या आपने इंटर्नशिप करी है? बिल्कुल। आपने इंटर्नशिप कहाँ करी है? So, अगर आपने, खैर ये तो डिफरेंट चीज है। सपोजिंग ये होता है XYZ लिमिटेड कंपनी, तो यहाँ पे उस कंपनी की पोजीशन होती है कि मैं वहां पे मार्केटिंग इंटर्न था। सो दिस वुड बी मार्केटिंग इंटर्न एट Gooby Rogers और एट XYZ लिमिटेड कंपनी। अब उस कंपनी में मैंने काम क्या किया है? वर्किंग एक्सटेंसिवली, these are the things that I have done, these are the things that I have offered. So ये बुलेट पॉइंट में आना बहुत जरूरी है। ये कैटेगोरिकली आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि आप एग्जैक्टली काम करते क्या हो। तो जब मैं आपकी बात करूंगा आपके पर्सनल इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस है, तो आपने उन कौन सी चीजों पे काम किया वो मुझे बुलेट पॉइंट्स में देखना। क्या आप मार्केटिंग कर रहे थे? ऑलराइट, यू वर डूइंग व्हाट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग? वर्किंग एक्सटेंसिवली ऑन द लाइंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स फॉर आवर क्लाइंट्स, content writing protocol, content writing projects for an upcoming digital marketing firm in Delhi. Your next project, working with a team of 40 people in order to execute a PR activity for Toyota company or Toyota automobiles, etc. etc. So आपका जो भी काम है वो मुझे बुलेट पॉइंट्स में जानना है, तभी उस चीज का इम्पैक्ट बाहर निकल के आएगा। सो क्या आपने लोगों ने इंटर्नशिप्स करी हैं? नहीं करी हैं? अभी कर लीजिए। इंटर्नशिप के बेसिस पे आपको जॉब्स मिलेंगी। मुझे आपका काम जानना है, मैं जानूंगा कि आपने काम क्या किया है। अगर विशाल कहते हैं, विशाल ने बोला कि मैं पेंटर हूं, उन्होंने सबसे पहले अपने पीछे अपनी पेंटिंग दिखाई। सबसे पहली चीज मुझे सुनाई बाद में दे रहा था, उनकी बात हमने बाद में सुनी है। उन्होंने अपनी पेंटिंग पहले दिखाई थी, अपना काम दिखाया कि हाँ जी दिस इज व्हाट आई डू। अब हमें पता है, अब वो उन्होंने बनाई है कि नहीं बनाई है वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने दिखा जरूर दिया कि मेरा काम है। विशाल, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऑफकोर्स आपने बनाई है और बहुत अच्छी बनाई है एंड इट्स लुकिंग रियली रियली गुड, बट आपने दिखाया हमें। सो आई नीड टू सी योर वर्क, आई नीड टू सी व्हाट इज इट दैट यू हैव डन। ठीक है जी। सो द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विल बी योर कॉलेज सोसाइटीज। आप कौन से कॉलेज सोसाइटीज का हिस्सा थे, क्योंकि वो भी आपके वर्क एक्सपीरियंस के अंडर आता है। So if you have any college societies in college, I want you to be a part of it. Placement cell, commerce society, E-cell, जो भी किसी भी किस्म का अगर आपके एक कॉलेज सोसाइटी है, प्लीज गेट इनटू इट। वो एक वर्क एक्सपीरियंस का हिस्सा है। उसमें एक टीम होती है, प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक जॉइंट सेक्रेटरी की टीम होती है, मार्केटिंग हेड्स होते हैं, उसके बाद मेंबर्स होते हैं। दिस इज नथिंग लेस देन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। सो ये भी आपका एक वर्क एक्सपीरियंस का हिस्सा बनता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत सिंपल है। एजुकेशनल बैकग्राउंड में अगेन यू विल बी, खैर ये तो अलग ही है। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में अगेन यू विल बी मेंशनिंग आप कहाँ एक्टिव थे, कौन सी आपने चीजों में पार्टिसिपेट किया है। मुझे एग्जैक्टली इन डिटेल उन सारी चीजों के बारे में जानना है। सो इट हैज टू बी इन एन एक्सटेंसिव फॉर्म दैट यू विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दीज थिंग्स टू मी। देन कम्स इन योर सर्टिफिकेशंस। वो कौन से सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो आपने करे हैं? आई एम प्रीटी श्योर लॉकडाउन के टाइम पे आपने बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज करे होंगे, राइट? ये सर्टिफिकेशन कोर्स मैंने काफी पहले करे थे, लेकिन मैं इनको हटा नहीं सकता, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली एक्सप्लेन कैसे होता है। So, जब भी मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाता हूँ, मैं ये दोनों कोशिश करता हूँ कि इन चीजों के बारे में ज्यादा फोकस करूँ। यूडेमी के बारे में आप जानते हो, कोर्सेरा के बारे में आप जानते हो, एडेक्स के बारे में आप जानते हो। प्लीज स्टार्ट डूइंग दीज कोर्सेज फ्रॉम दीज वेबसाइट्स इन whichever area of interest you have. विशाल, if you are interested, नहीं नॉट विशाल, क्या नाम था उनका, मैं नाम ही भूल गया। अभी किससे बात कर रहे थे हम? हरगोविंद से बात कर। आई एम सो सॉरी हरगोविंद, मैं आपका नाम भूल गया, प्लस आपकी अब मुझे वीडियो दिख भी नहीं रही है। सो हरगोविंद ने बोला कि मैं उस चीज में इंटरेस्टेड हूँ। किसमें? इकोनॉमिक्स में। What field of economics? Start doing your courses in the field of economics. इकोनॉमिक्स पे कोर्सेज आप करना शुरू करिए, यहाँ पे डालिए। आपने बोल तो दिया कि आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हो, लेकिन आपने क्या उसमें कोई सर्टिफिकेशन करा है? क्या आपने कोई इंटर्नशिप किया है उस फील्ड के अंदर? तभी तो मैं आपको एज एन इंटर्नशिप या एज अ जॉब ऑफर कर सकता हूँ। अगर आपने काम ही नहीं किया तो मैं कैसे ऑफर करूंगा? सो ऑल दीज थिंग्स गो हियर। वॉलंटियर एक्सपीरियंस, अगेन वेरी सिमिलर टू योर वर्क एक्सपीरियंस।
एनजीओ के बारे में किसी ने बात करी, राइट, तो ये चीज उसके अंदर यहाँ पे जाएगा। आप एग्जैक्टली कौन से सोसाइटी में थे या किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया, किस किस्म का काम किया, right? Work with underprivileged schools and the students towards improving their lifestyles and helping them in achieving their goals in life. Something of that sort. Planning and strategy related decision pertaining to a duration of 10 to 12 months. ये इसका एक हिस्सा है। एक वीडियो बनी थी, उस वीडियो में क्या क्या चीजें हाईलाइट करी, आपके वर्क एक्सपीरियंस क्या कहता है इन 11 महीनों में, या आपके लिए 4 महीनों में, 2 महीनों में, 1 महीने में आपने काम क्या किया है। आई वांट टू नो दैट। ठीक है जी। उसके बाद हम एंडोर्समेंट्स और इन चीजों के बारे में बात करें। रिकमेंडेशंस के बाद आपके अकम्पलिशमेंट्स आते हैं। रिमेंबर, अकम्पलिशमेंट्स आपके एंडोर्समेंट्स की वैल्यू इतनी नहीं होती है। डू नॉट रन आफ्टर दैट, डू नॉट रन आफ्टर रिकमेंडेशंस, एंडोर्समेंट्स, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। आई वांट टू आल्सो नो व्हाट आर द लैंग्वेजेस दैट यू नो। आई आल्सो वांट टू नो आपने वो आपके पास कौन से अवार्ड्स हैं या आपने एग्जैक्टली क्या लाइफ में किया है। ये इसकी वैल्यू होती है, डेफिनेटली होती है, लेकिन याद रखिएगा कि ये लास्ट है। कैन यू सी दिस? दिस इज लास्ट ऑन योर प्रोफाइल। इसकी इंपॉर्टेंस सबसे लास्ट में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऊपर का सेक्शन है, उसके बाद आपका अबाउट सेक्शन है, एंड उसके बाद आपका एक्सपीरियंस। आप क्रोनोलॉजी समझिए। दिस इज द क्रोनोलॉजी दैट यू हैव टू फॉलो। एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन सो फार? इसके बाद आई एम मूविंग ऑन टू, यू कैन रेज योर हैंड। आप रिएक्शन के थ्रू एक हैंड रेज दिखा सकते हैं। आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन टॉक टू मी। Also, please keep your cameras on. Can I have all the cameras on very quickly? एक दो और स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है। Can I have all the cameras on very quickly? Any questions so far? Any questions? Any questions? Any questions? हाँ जी, Hemant has a question. All right, Hemant, just give me a second. Hemant, you are unmuted. हेमंत, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैम, आपको आवाज आ रही है हेमंत? नहीं आ रही है। हेमंत, यू आर नॉट ऑडिबल। आप या तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज। आप यू कैन आल्सो टाइप इट आउट इन द चैट बॉक्स। सम इंटरनेट इशू। एनीबॉडी एल्स टिल देन? एनीबॉडी एल्स? Anybody else? Anybody else? Hemant, you want to try once again? आपको मैंने रिक्वेस्ट भेजा है। और नहीं, change the settings that students can unmute themselves. नहीं मैम, वो he has unmuted himself, Okay. but he's not audible that way. उसकी उनके एंड से आवाज नहीं आ रही है। All right, no worries, no worries. Anybody else till then? चलिए हेमंत, maybe you can just type it out in the chat box. मैं आपका chat box से देख लेता हूँ। All right, he has a question, sir. I want to ask one question. If you're doing personal branding and want to do freelancing, so what would be mentioned in our about section? That you are a Okay, can you also tell me what kind of freelancing you're talking about? जल्दी से लिख दीजिए, what freelancing? Okay, I do have a few questions. And they have been texted me directly. You can also keep it to everyone, please. All right. I have allowed to unmute. If anybody wants to ask question, you will be able to unmute now. Great. Thank you so much, ma'am. Anybody? All right. I have a couple of questions. I want to ask one question. If you're doing, okay, so I'm doing digital marketing. So since you're already doing digital marketing, सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि digital marketing में multiple fields होते हैं. So वो कौन से fields हैं जिसमें आपकी web designing का भी, SEO, search engine optimization का भी, perfect. So you are an aspiring or rather a practicing freelancer. You've worked with clients pan India. If you have only restricted yourself to Faridabad or to Delhi NCR, आप वो भी लिख सकते हैं. Extensively worked in the domains of digital marketing में specifically बताइए कौन सी चीजें. SEO is a part of it. ठीक है जी. Google AdWords का आपने पार्ट किया है. Facebook, Instagram advertisements में आपकी पार्ट है. So वो bullet points में आप दिखा देंगे मुझे. ठीक है. एक चीज डिजिटल मार्केटिंग में एक आपको और याद रखना है, व्हाट इज योर ROI? ROI, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट. नाउ आपका रिटर्न क्या रहा है? आपने लेट्स से क्लाइंट ने आपको 50,000 रुपीज दिए,
ठीक है, कि मेरे को 50,000 का इम्पैक्ट बनाना है, उसमें से उसको लीड्स, जेन्युइनली लीड्स मिले लेट्स से 200, सो आपका वो ROI कितना रहेगा, आपका वो पर CPC कई बार होता है, राइट, कॉस्ट पर क्लिक कहा जाता है। सो आपके जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो कॉस्ट पर लीड हो, चाहे वो कॉस्ट पर एक्विजिशन हो, चाहे वो कॉस्ट पर क्लिक हो, आपके लिए वो नंबर्स क्या डिफाइन करते हैं। How are you a good digital marketer? I will come to see by that CPC or by CTA or by your cost per lead. आपने एक्चुअली में कितने क्लाइंट्स मुझे दिए हैं। सो आई वांट टू नो दैट। वेब डिजाइनिंग, हेमंत आप वेब डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं, सो क्या आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं, क्या आप वर्डप्रेस पे काम करते हैं, क्या आप रिएक्ट पे काम करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, आप हेमंत जल्दी से बता दीजिए, बिकॉज देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ सेटिंग अप अ वेबसाइट। सो वेबसाइट डिजाइनिंग बिल्कुल अच्छी बात है, सो वर्डप्रेस डेवलपर बात खत्म हो जाती है। सो आई हैव बीन यूजिंग वर्डप्रेस, माय प्राइमरी टूल फॉर वेबसाइट डिजाइनिंग इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में भी एलिमेंट्स होते हैं, प्लगइन्स होते हैं, right? For those of you who know WordPress and who know website designing, there is something called a template, there is something called the many things templates होते हैं। WordPress को वेबसाइट को सेटअप करने के लिए बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं, होस्टिंग करके एक चीजें होती हैं। So all of these things are there. Are you aware of these things? If yes, name them. Elementor का नाम सुना आपने हेमंत? किसी ने सुना है Elementor का? If anybody who's doing website designing, so Elementor is a very sophisticated platform जो WordPress पे डेवलप होता है वेबसाइट्स के लिए। So आप Elementor का नाम लिखेंगे, these are industry words, industry standard terminologies. Now this could be anything else. ये एक content writing का हिस्सा बन सकते हो। If you are a content writer, if you're a freelance content writer, for example, then you will write about proofreading, content writing for website content, blog writing, Instagram posts. वो कौन सा काम है आपने जो किया है, राइट? हेमंत, कैन आई गेट अ थम्स अप? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? डेफिनेटली, ग्रेट। एनीथिंग एल्स? एनी अदर क्वेश्चन बिफोर आई मूव ऑन? एनीथिंग एल्स? चलिए, लेट मी नाउ क्विकली मूव इनटू, आई शेयर माय स्क्रीन वंस अगेन। ऑलराइट, just let me know if you can see my screen. Thumbs up दे दीजिए प्लीज। Tanuj, can you see my screen? Thumbs up. All right. Yes, sir, it's visible. Thank you. So now let me come on to a very important section. Okay, great. I can't even see the section now. All right. अब हम जाएंगे jobs में, right? अब आपको लगेगा कि jobs में सिर्फ नौकरियां मिलती हैं क्योंकि उसका नाम ही जॉब्स है। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि यहाँ पे सिर्फ नौकरियां नहीं मिलती हैं, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि इंटर्नशिप्स, जैसे कि फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, जैसे कि फ्रीलांस कंसल्टेंट्स, बहुत कुछ मिल सकता है यहाँ पे, इंटर्नशिप्स तो खासकर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ये आपका एक डैशबोर्ड है, ठीक है जी, ये आपका एक डैशबोर्ड है। क्या सबको डैशबोर्ड दिख रही है? राइट, रेकमेंडेड, ऑफ कोर्स ये क्योंकि मेरी प्रोफाइल के हिसाब से वो बता रहा है, आपको एज अ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताएगा। अब इतनी दुनिया अभी भी हायर कर रही है, हमें चाहिए मार्केटिंग इंटर्नशिप्स, ठीक है जी। हम यहाँ पे गए, हमने टाइप किया मार्केटिंग इंटर्न। अब हम जब ये टाइप करेंगे, आप देख रहे हो कितनी सारी चीजें दिख रही हैं आपको, मार्केटिंग इंटर्न, इंटर्नशिप, इंटर्न कम्युनिकेशन। हमने किया मार्केटिंग इंटर्नशिप, ठीक है जी। अब हम हैं लेट्स से फरीदाबाद से, हमें चाहिए दिल्ली NCR में, तो हम दिल्ली, न्यू दिल्ली का नाम का लोकेशन डाल सकते हैं। अब हो सकता है कि हमें थोड़ा सा और लोकेशन फरीदाबाद की तरफ भी चाहिए, हम फरीदाबाद भी डाल सकते हैं। चलो जी, लेट्स टेक फरीदाबाद। अब ये वो इंटर्नशिप्स हैं जिनकी कंपनीज फरीदाबाद के अंदर है। ओके, फरीदाबाद में अगर नहीं है तो उसने क्या किया, आपको एक रेडियस दिखा दिया, डिस्टेंस का रेडियस दिखा दिया कि वो कौन सी कंपनीज हैं, वो किस सिटी में हायर कर रही हैं। आपने फरीदाबाद में डाला है, सो फरीदाबाद के हिसाब से 40 किलोमीटर की रेडियस में आपको दिखाएगा। सो यहाँ पे आप एग्जैक्ट लोकेशन में देख सकते हैं, जो कि फरीदाबाद बन जाएगी 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं। सो फॉर द टाइमिंग लेट मी जस्ट कीप
40 किलोमीटर्स, कोई बात नहीं, हम दिल्ली और गुड़गांव और फरीदाबाद सारी चीजें कवर हो जाती है उसके अंदर। अब एनी टाइम करेंगे इसको हम, या पिछले 1 महीने में जिसने इंटर्नशिप लॉन्च करी है, मार्केटिंग इंटर्नशिप की बात हो रही है यहाँ पे। हमें एक्सपीरियंस लेवल क्या लेना है, इंटर्नशिप एंट्री लेवल, ठीक है जी। अभी भी 248 इंटर्नशिप्स हैं। अब किस कंपनी में हमें करना है, कैसे करना है, अभी हम बात नहीं करेंगे। जॉब टाइप क्या आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, इंटर्नशिप है, इसमें भी आप चूज कर सकते हैं। हालांकि हमने क्योंकि ऑलरेडी इंटर्नशिप चूज कर रखी है, इसलिए मैं ज्यादा लूंगा नहीं, इसको हम कैंसिल कर देंगे, कोई बात नहीं, हम ऑलरेडी इंटर्नशिप ही देख रहे हैं यहाँ पे। अब जब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूं, इट इज शोइंग मार्केटिंग इंटर्नशिप्स इन फरीदाबाद हरियाणा, 248 रिजल्ट्स, राइट? This is the internship that you can find. These are the internships that you can do. यहाँ पे आई फोर्टिस कॉर्पोरेट करके कंपनी है जिसने अपनी एक इंटर्नशिप निकाली है। मिस अनन्या ओबरॉय, हु इज अ ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनी, उन्होंने इस इंटर्नशिप को लॉन्च किया है, पोस्ट किया है ऑन द बिहाफ ऑफ आई फोर्टिस कॉर्पोरेट। आई फोर्टिस कॉर्पोरेट क्या करता है, हमने राइट क्लिक किया, ओपन इन न्यू टैब किया, हमने पहले तो आई फोर्टिस के बारे में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम आई फोर्टिस हॉस्पिटल तो नहीं है, आईटी फर्म, आईटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सर्विस, बैंगलोर की कंपनी है ये। वो क्या काम करती है, हम यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं। पहले हमने कंपनी के बारे में देख लिया, हम वापस आते हैं। अब ये बताएंगे हमें कि हमें एग्जैक्टली काम करना क्या है। यहाँ पे एक कॉर्पोरेट एम्बेसडर भी हायर कर रहे हैं, उसमें ये काम होगा, रिप्रेजेंटिंग आवर कंपनी इन योर कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। Marketing and sales, representing our company in your friends, family and circle through all portals, etc., etc. Duration minimum of 1 month, can be extended up to mutual interest. Perks, इसमें आपको मिलेगा क्या क्या? This is all that you're finding. These are all the things that you're finding. How to apply? This is a form link. इसका प्रोसेस क्या होने वाला है? पहले रेज्यूमे की स्क्रीनिंग होगी, फिर वर्चुअल इंटरव्यू होगा। वेरी गुड। इसमें ऑलरेडी, खैर ये तो मेरे साथ कनेक्शंस हैं, आपके भी हो सकता है कि कुछ कनेक्शंस यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हो, आप एक रेफरल के थ्रू भी इनसे बात करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास ये सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं। अब आप इनको अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई ऑन लिंक्डइन। अब ये क्या कर रहा है, इसने मेरी डिटेल्स खोली, उसने दिखाया कि मेरा ईमेल एड्रेस ये है, ठीक है जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये है, ठीक है जी, माय रेज्यूमे। अब यहाँ पे मुझे मैंडेटरली एक रेज्यूमे अपलोड करना है। अब ये रेज्यूमे मेरा होने वाला है। ऑफ कोर्स ये मेरा रेज्यूमे है, लेकिन ये बहुत पुराना रेज्यूमे है। ये मैंने, अब क्योंकि मैं सेशंस करते रहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा रेज्यूमे रीड्राफ्ट करके अपलोड कर देता हूँ, ताकि लोगों को दिखे कि रेज्यूमे कैसा दिखना चाहिए या वो अपलोड होता कैसे, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरीली मुझे रेज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा। अब ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, रेज्यूमे मैंने अपलोड कर दिया, ये एक ऑप्शन है फॉलो आई फोर्टिस कॉर्पोरेट टू स्टे अप टू डेट विद देयर पेज। अगर कल को ये अलग से कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी रिलीज करते हैं या कोई अपडेट देते हैं, तो मुझे ईमेल आ जाएगा और मुझे मेरे नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा कि आई फोर्टिस कॉर्पोरेट ने कुछ लॉन्च किया है। इसको मैं अनफॉलो भी कर सकता हूँ, फॉलो भी कर सकता हूँ, एंड सिंपली सबमिट एप्लीकेशन। ठीक है जी, यू अप्लाइड। अब ये जो एप्लीकेशन मैंने फाइल किया है, ये मेरे ईमेल एड्रेस में, जो ईमेल एड्रेस पहले दिख रहा था, उसी ईमेल एड्रेस में एक ईमेल आ जाएगा दैट यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड टू आई फोर्टिस कॉर्पोरेट। अब वो अलग बात है कि मैंने कर दिया, ये लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों अप्लाई किया है, लेकिन जब अप्लाई करोगे उनको एक लिस्ट मिल जाएगी। दे विल नाउ गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स विद देयर लिंक्डइन प्रोफाइल। उस पर वो क्लिक करेंगे, पूरी लिंक्डइन प्रोफाइल पहले देखेंगे। उसके बाद एक सेकंड कॉलम में लिखा होगा रेज्यूमेज, जो आपने रेज्यूमे अपलोड किया है। तो अगर वो आपका रेज्यूमे देखना चाहते हैं तो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से पहले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लिंक्डइन पे आपने अप्लाई किया, लिंक्डइन की पूरी प्रोफाइल वो स्कैन कर सकते हैं। बिफोर गेटिंग ऑन टू योर रेज्यूमे, दे विल फर्स्ट गेट ऑन टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल। ओके, लिंक्डइन प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लग रही है, लगता है कि ये स्टूडेंट काम कर सकता है, काम कर सकती है। ओके, लेट्स लुक एट द रेज्यूमे। रेज्यूमे को थोड़ा बहुत स्कैन किया एंड आपको एक मैसेज आ जाएगा। हालांकि आपने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपको कॉल कर लें, वरना वो आपको उसी के थ्रू एक ईमेल भेज देंगे, मैसेज आ जाएगा आपके पास। कहां पे? इसको मैं कैंसिल करता हूं। यहां पे आपके इनबॉक्स में एक मैसेज आ जाएगा दैट हे यू हैड अप्लाइड फॉर दिस इंटर्नशिप, वुड यू बी कंफर्टेबल विद गेटिंग ओवर अ टेलीफोनिक इंटरव्यू और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो भी वो आगे प्रोसीजर आपका देना चाहते हैं। अगर आप रिजेक्ट होते हो तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन इंटर्नशिप्स
में अप्लाई करना स्टार्ट करें। इजी अप्लाई ऑन लिंक्डइन, दीज आर द थिंग्स दैट यू गेट। सोशल मीडिया इंटर्नशिप की हम बात कर रहे थे, ये कंपनी है जो आपको एक सोशल मीडिया इंटर्नशिप ऑफर कर रही है, सीधा अप्लाई करिए। अगेन अ डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप। हम फाइनेंस की बात करते हैं, चलिए फाइनेंस इंटर्नशिप, फाइनेंस इंटर्न आ गया, ठीक है जी। करंट लोकेशन गुड़गांव, पोजीशन फाइनेंशियल इंटर्न, विच इज दिस कंपनी प्रॉफिट आइडिया। कंपनी कौन है, क्या करती है, इस पे क्लिक किया, कंपनी को खोला, चेक किया कि क्या है कंपनी, करती क्या है। इसमें स्किल्स क्या चाहिए मुझे, आई नीड नॉलेज इन फाइनेंस एंड फाइनेंशियल टर्म, नॉलेज ऑफ एक्सेल, दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एलिजिबिलिटी, द स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग एमबीए सीएफए CACS with a strong analytical skills and desire to work, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रही है, लेकिन अगर आप में से कोई भी CA CS CPA FRM फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट CFA सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट इन चीजों को परस्यू कर रहे हैं तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। These are all the things that you will get, again apply. So these are all the things that you can get. ये आपके सामने है, लेकिन ये तब तक इस चीज की वैल्यू नहीं रहेगी जब तक आप अपना रेज्यूमे ना बनाएं, जब तक आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी तरीके से ना बनाएं। यहाँ पे एक और चीज है, 7 एप्लीकेंट्स। इस शाइन प्रोजेक्ट्स करके कोई कंपनी है जो एक फाइनेंशियल इंटर्न हायर कर रही है, सेल्स एंड मार्केटिंग इंटर्न हायर कर रही है, उसमें सिर्फ 7 लोगों ने अप्लाई किया और 4 हफ्ते पहले एप्लीकेशन इन्होंने निकाला था, तो ज्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया। आप अप्लाई कर सकते हो उसमें, आप डायरेक्टली इनके साथ भी बात कर सकते हो। कैसे, कृतिका नौटियाल ने इनकी इंटर्नशिप अप्लाई करी थी, मतलब लॉन्च करी थी, हम उनके प्रोफाइल पे आ गए, ठीक है जी। हमने कनेक्ट का बटन दबाया, बट यहां पे मैं सेंड नहीं करूंगा, यहां पे मैं करूंगा ऐड नोट, ठीक है जी। अब यहां पे हम लिखेंगे, हाय कृतिका, होप यू आर डूइंग वेल, आई केम अक्रॉस योर जॉब पोस्टिंग फॉर शाइन प्रोजेक्ट्स, ठीक है जी। लुकिंग forward to a, नहीं अच्छा, I have space to write, 300 कैरेक्टर्स आप डाल सकते हो इस चीज के अंदर। I believe I am a suitable candidate for the same. Kindly go through my LinkedIn profile and let me know if we can connect regarding the same. Best wishes, जो भी आपका नाम है। सिंपल आ गया। अब जब ये मैसेज उनको जाएगा, अभी मैं सेंड नहीं करने वाला हूं, वरना वो सोचेंगे कि मैं क्यों ये चीज कर रहा हूँ। तो ये जब मैं सपोजिंग मैंने सेंड कर दिया, ठीक है जी, तो ये जब मैं सेंड करूंगा तो मैं सपोजिंग मैंने इसको हटा दिया एंड मैंने कैंसिल करके ऐसे सेंड कर दिया, तो अब इनके पास एक रिक्वेस्ट चली जाएगी, ठीक है जी। अब जब मैं आपको ये मैसेजेस, सॉरी, एक नेटवर्क, आई एम जस्ट सीइंग इफ आई हैव एनी any message which I've received along with the connect request। ये देखिए, इनको एक ऐसी एक ईमेल मिलेगी, ये देखिए ऐसा रिक्वेस्ट आ जाएगा इनके पास। This is the request that he has sent. Hi Daksh, it seems that you also put up in Gurgaon. Look forward to learning from you. पता नहीं क्यों लिखा उन्होंने ये, लेकिन उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट भेजी है ऐसा लिख के। तो जब मैं ये रिक्वेस्ट यहाँ पे नेटवर्क में यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे एक नोट आ जाएगा इसके साथ साथ, जिसमें ये चीज लिखी होगी जो भी मैंने आपको बताया, हाय कृतिका, दिस इज हु आई एम। जब वो इस नोट को पढ़ेंगी, एंड मोर ऑफन देन नॉट ये नोट पढ़ा जाएगा, जब ये नोट पढ़ा जाएगा तब वो मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगी। जैसे इन्होंने अप्लाई किया है या रिक्वेस्ट भेजी है, मैं इनकी प्रोफाइल पे जाऊंगा एंड आई विल गो थ्रू द प्रोफाइल।
यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं प्रोफाइल में, लेकिन मैं उस प्रोफाइल पे देखूंगा, अगर वो मुझे सूटेबल लगा, यानी कि आपकी प्रोफाइल अगर उसमें जेन्युइन कंटेंट है, जेन्युइनली आपने काम किया है, आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू एंड गेट थिंग्स डन एज सून एज पॉसिबल। मेरे लिए तो काम आसान हो जाएगा, मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं, मुझे बार बार किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं। आप समझ रहे हो, आपके सामने है इंटर्नशिप, आपके सामने है जॉब अपॉर्चुनिटी, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उसको लेना कैसे। मैं चाहता हूं कि ये गलतियां लोग ना करें, खासकर आप इस इन थोड़ी सी चीजों पे आप फोकस करें। ठीक है जी, आई एम करंटली परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम औरबिंदो कॉलेज। उन्होंने ऐसे इस तरीके से लिखा है, आई बीन अ पार्ट ऑफ मेनी इंटर्न एंड इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशंस। ये थोड़ा सा बेसिक लेवल पे लिखा गया। आई डेफिनेटली वांट यू टू राइट अ फार मोर इलैबोरेट वर्जन ऑफ दिस, a far more elaborate version of this. Public speaking is an art and I'm building myself as an artist for it. ये चीज इनके LinkedIn headline में भी होना चाहिए था। सिर्फ सोशल मीडिया इंटर्न आयुष्मान फाउंडेशन इज नॉट गुड इनफ, यहाँ पे भी एस्पायरिंग पब्लिक स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकर भी आ सकता है। सो यू नो दिस इज हाउ यू क्रिएट दैट लिंक्डइन प्रोफाइल, एक इम्पैक्ट पड़ता है। एंड कैन यू डू दिस 110%? Who are these people? These are people just like you. So I need you to be aware of this thing. I want you to, you know, put in this effort. And absolutely, this is just like anybody else. This is just like anybody else. So I hope today everybody's going to go back. Point number one, step number one is to build your LinkedIn profile. Step number two is to actually start making your resume. Your resume is going to be a condensed version of your LinkedIn profile. Your LinkedIn profile is going to be an elaborate version of your your resume. Resume में आप थोड़ी सी कम चीजें लिखते हो, LinkedIn पे आप थोड़ा सा लंबा लिखते हो, अच्छी तरीके से भर भर के लिखते हो। You will upload your resume and you will start applying to these internships. Remember, your profile picture has to be a formal profile picture. Formal profile picture. मैं आपको एक formal profile picture शायद से दिखा भी सकता हूँ, अगर मैं दिखा पाऊँ आपको। Just give me a second. Just give me a second. क्या नाम था उनका? All right. तो बिल्कुल इसी तरीके से आपकी भी प्रोफाइल पिक्चर बनेगी। Just give me a second. Just give me a second. All right. Okay, just let me know if you can see my screen. Can I have all the cameras on as well? काफी लोगों ने cameras बंद कर लिए हैं. I will now be coming on to the questions very quickly. All right, just let me know if you can see my screen. Of course, आपको इस तरीके की अब आप I'm pretty sure you don't look like this, but the angle, the look that you have to give for your profile picture. The girls and the boys will be clicking it like this. Definitely like this. You will suit up. You can wear a tie. White background here. इसमें तो हमने white background हटा दिया था. We removed the background and we kept it white. The impact that it creates. Yes, you're professional. You're formal. It gives a good, strong impact. He's at a very senior position. इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब एक professional looking profile picture बनाएं. The impact that it has is crazy. All right, I have a few questions in the chat box. Let me now get to the chat box. Sir, how to make a LinkedIn ID of an accountant? The same way. It does not matter who you are. So some people think that internships should be paid. Always should you overcome with their misunderstandings. So I think a good question. Let me tell you. It depends on what kind of experience this internship opportunity is giving you. अगर आपको लगता है कि इसमें एक तो ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है, अगर आपको लगता है कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप 2 महीने काम करोगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, डेफिनेटली रहेगी, उसको आपको लॉन्ग टर्म में आपका बेनिफिट रहेगा। अगर एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि अच्छा काम कर रहा है लेकिन इसमें आप सिर्फ फाइनेंस नहीं बल्कि मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशन, क्लाइंट इंटरैक्शन में भी इन्वॉल्व रहोगे, सो डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा रहने वाला है। क्योंकि जब आप इस एक्सपीरियंस को रेज्यूमे पे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे डालोगे तो उसमें आप नीचे नहीं लिखोगे कि आपको स्टाइपेंड कितना मिल रहा था, आप ये लिखोगे कि आपने काम क्या किया वहां पे। उसके बेसिस पे आपको अगली इंटर्नशिप, अगली जॉब मिलने वाली है।
So please understand that those 2,000, 3,000 rupees of stipend is not going to get you the next internship. So internship आपको definitely लेनी चाहिए, लेकिन it has to have good potential, not just the stipend. All jobs are available in this app. Yes. Okay, there is a feedback link, everybody. Would request you to please fill it up very, very quickly. So should we add open for job? Yes, you can. So there is an option on your LinkedIn profile which says, are you open to job? Definitely वो आपके profile के side में रहेगा, and you can definitely look at, you can open that. लेकिन उससे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है. It is just an add-on advantage. वो तब होता है जब at a very senior level position there are people who may not switch. एक अच्छे पोजीशन पे हैं, वहां पे आप चाहते हो कि कोई आपको अप्रोच करे तो आप उसको ओपन करके रखते हो. इट इज, हालांकि आप सभी लोग कर सकते हो, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत एक सीनियर लेवल पे ज्यादा आती है. सर, हाउ आर यू? आई एम गुड, राशिद. आई एम गुड. सर, हाउ कैन वन बिल्ड a personal brand using LinkedIn? Exactly the same way. You start posting about your content, your area of interest. I am an academician. I have my own training programs which I run. I have student feedbacks which I cater to. All those things are documented and uploaded on LinkedIn. And I then communicate and engage with more people. LinkedIn पे आपको एक दूसरे के साथ बात करते रहना पड़ेगा, professionally बात करते रहना पड़ेगा. If you're looking at a personal brand, Sarthak is, I think, the person who asked me this question. Sarthak, what area of interest are you looking at? Sarthak, could you just unmute yourself? Sarthak. Yes, sir. Sir, am I audible? Yes, you're audible. थोड़ा सा loudly आप बात कर सकते हैं, थोड़ी आवाज कम आ रही है. Yes, sir. हाँ जी, बताइए. Sir, my interest is in finance and marketing. As a personal brand आप कह रहे हैं. Yes, So, sir, public speaking. Okay, public speaking is one. Okay, anything else? Okay, fair enough. You can be somebody who has a personal brand in the field of finance and accounts as well. ऐसा भी कुछ नहीं है, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा कि आप वो चीज भी नहीं कर सकते हो. Definitely ये चीज कर सकते हो. But then you will have to start posting regularly on a daily basis. क्या post कर रहे होगे? Something to do with your area of interest, something to do with finance. The latest technology is coming into it. Fintech, financial technology companies, वो लोग क्या कर रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर्स क्या आ रहे हैं, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्रिएट हो रही हैं, उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा. आप फाइनेंशियल फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में क्या काम कर रहे हो, आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा. Have you attended a recent conference? Have you attended a recent webinar? उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपलोड करिए. मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब हम खाना खाने जाते हैं, बाहर कॉफी पीने जाते हैं, डेट्स पे जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, हम क्या करते हैं, स्टोरी डालते हैं, 2-4 लोगों को, 2-4 फ्रेंड्स को टैग करते हैं कि नहीं करते. यहाँ पे आप उन्हीं लोगों को टैग करोगे लिंक्डइन पे @, करके जिन लोगों के आपने वेबिनार अटेंड किया, जिन लोगों के साथ आपने वेबिनार अटेंड किया, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है. तो कंपनी जिस कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया है, जो स्पीकर थे, उनको आप टैग करेंगे. चाहे आप 2 और लोगों को जानते हो जो वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, आप उनको टैग करेंगे. दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू स्टार्ट पोस्टिंग. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, when I look at Sarthak's content on a regular basis, I now subconsciously know that Sarthak is somebody who's in the field of finance, in the field of fintech, and has good, strong understanding of finance. So tomorrow, if I need help in the field of finance, if I need guidance, Sarthak will be the go-to person. This will take some time, 2 months, 3 months, 4 months, but it will happen 110%. If you're talking about freelancing, आपने freelancing का कौन सा बताया था सार्थक? Public speaking. नहीं, चलो पब्लिक स्पीकिंग, फ्रीलांसिंग पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती है. आप पब्लिक स्पीकिंग भी किस फील्ड में कर रहे हो, वो मैटर करता है ना. कम्युनिकेशन. नहीं, आप समझेंगे व्हाट आर यू डूइंग जिसके लिए आप पब्लिक स्पीकिंग इज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. मैं भी पब्लिक स्पीकिंग कर रहा हूँ इस टाइम पे, लेकिन मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज बता रहा हूँ, राइट. वो पर्टिकुलर चीज क्या है जो आप बताते हो? इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग करता हूँ सर. चलो, इम्प्रोव ऑन व्हाट? आप कॉमेडी करते हो, आप गाना गाते हो, आप क्या फैक्ट्स बताते हो, हिस्ट्री के बारे में आपकी नॉलेज है? यस, फैक्ट्स बताते हो. चलो, सो जनरल फैक्ट्स आपके. सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट शूटिंग योर वीडियोस. आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, आप कहीं ना कहीं छोटे गिग्स कर सकते हो, अपने क्लास के साथ बात कर सकते हो, 4 लोगों इकट्ठा करके एक वीडियो शूट करके इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे अपलोड करना शुरू कर सकते हो. दिस इज द प्रोसेस टू
पर्सनल ब्रांडिंग। मुझे तब तक वो चीज नहीं पता चलेगी जब तक मैं आपको एज अ पब्लिक स्पीकर देखूं ना, सुनूं ना, राइट? तब तक आपको भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आपको भी आगे वो बूस्ट नहीं मिलेगा। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, दिस इज हाउ इट हैपेंस। सपोजिंग यूर अ डिजिटल मार्केटर, आपने डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रोजेक्ट खत्म किया, उसमें आपने सारे अपने नंबर्स निकाले, ROI, CPC, CPL, सारे नंबर्स निकाले, आपने किस कंपनी के लिए काम किया, आपका बजट कितना था, आपने एक्सेल शीट बनाई, एक पोस्टर बनाया, उसको लिंक्डइन पे डाला। Recently got done with my freelance project for a company which I cannot name, which I cannot disclose. Simple. And these were the numbers, this was the budget, this is what I have been able to generate. Now somebody, you are marketing yourself here, right? Anybody, all the girls and the boys, you're marketing yourself. आप क्या बता रहे हो? अपना personal brand बता रहे हो. And on the basis of that, I will definitely reach out to you if I have a requirement. ये चीज मैंने खुद इस्तेमाल करी है, इसी तरीके से मुझे भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं आज भी। I just document it. It is nothing but documentation. ठीक है जी? All right. Similarly, वेबसाइट आपने बनाया, आपने कोई कंटेंट राइटिंग का कुछ बनाया, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया, आपने अपलोड किया. This is what you do. All right. Hello, Thank sir. you, sir. All right. Yeah, most welcome, Sarthak. All the best. Hello, how are you, sir? And how is your family? I'm good. My family is doing great. All right. So some people add banner on the profile. Is that a right way? Absolutely, yes. हम उसी के बारे में बात कर रहे थे एक्चुअली कि आपका वो लिंक्डइन कवर फोटोग्राफ है, बहुत जरूरी है। सो हाउ टू क्रिएट रेज्यूमे लिंक्डइन ऐप। आप रेज्यूमे लिंक्डइन ऐप पे नहीं बना सकते, आप अपलोड कर सकते हैं। रेज्यूमे आप अलग से बनाओगे वर्ड डॉक्यूमेंट पे या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आप बोलोगे कि सर वो तो हॉरिजॉन्टल होता है, मैं कैसे बनाऊंगा? उसमें आप ऊपर जाओगे, फाइल में पेज सेटअप में A4 का साइज चूज करोगे तो वो A4 की प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। उसके अंदर आप उसी तरीके से एडिट कर पाओगे जिस तरीके से आप वर्ड पे करते हो, लेकिन थोड़ी आसान तरीके से कर पाओगे। आई वुड रेकमेंड कि आप अपने रेज्यूमेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे बनाइए, बिकॉज उस पर एडिट करना ज्यादा आसान होता है। इनफैक्ट मैंने जब लास्ट में मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम हुई थी, मैंने रेज्यूमेस का फॉर्मेट शेयर भी किया था आपके साथ। सो all right, can we make resume in Canva? Absolutely not. गलती से भी नहीं। आप ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं कर रहे हो, आप अपना रेज्यूमे बना रहे हो, राइट? बहुत बहुत समझदारी के साथ बनाना है। इट हैज टू बी वेरी प्लेन, सिंपल, एलिगेंट। इट हैज टू बी टू द पॉइंट, नॉट ग्राफिकली प्रेजेंटेड। मैं बता रहा हूं, अभी भी अगर आप एक ऐसा रेज्यूमे बनाते हो जिसके ऊपर कलर बहुत ज्यादा है, इन्फोग्राफिक्स आपने बनाए, आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, 1 पेजर बनाने की कोशिश करी, वो पढ़ा भी नहीं जाएगा। इट विल नॉट इवन बी रेड। इट हैज टू बी अ वेरी सिंपल, प्रोफेशनल लुकिंग रेज्यूमे। सो सम पीपल ऐड बैनर। ऑल राइट, सो ये चीज प्रोफाइल पिक्चर, यस, नहीं, वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली हो जाता है बैनर। जब आप ओपन टू वर्क या ओपन टू जॉब्स का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक सर्कल बना आ जाएगा उसके ऊपर। वो खुद नहीं करते हैं, वो अपने आप ही होता है। इट automatically creates a filter over the picture. So don't worry about that. My main motive behind this session was, and the main motive behind your faculty members for having the session was that it's important that everybody is on LinkedIn. LinkedIn की अहमियत आपको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। It is not difficult. It is like any other platform. थोड़ा सा effort डालने की जरूरत है। To the 60 odd people watching this, make your LinkedIn profile today. अगर अभी तक आपके पास नहीं है तो आज से बनाना शुरू करिए, अभी भी देरी नहीं हुई है। जिनके पास लिंक्डइन प्रोफाइल ऑलरेडी है उसको आप रीड्राफ्ट करिए, बेटर बनाइए। आपको मैंने बता दिया एग्जैक्टली कैसे करना है। कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। इफ यू नीड हेल्प, ड्रॉप मी अ मैसेज, फील फ्री टू रीच आउट एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल। सबसे पहले कनेक्ट आप किसके साथ करते हो? इंस्टाग्राम पे आपने नई प्रोफाइल बनाई, फेसबुक पे नई प्रोफाइल बनाई, आप सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करते हो। Similarly, you will connect with your friends on Instagram, on LinkedIn, your known people. अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी LinkedIn पे हैं, उनके साथ कनेक्ट कर लो। आपको ऑटोमेटिकली सजेशंस में उन्हीं लोगों के बारे में पता चलने लग जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे जा चुकी है, वो ऑलरेडी आपको ऐसे नाम दिखाएगा जो ऑलरेडी आपके कॉलेज में काम पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। सो एलुमनाई भी दिखाएगा, एलुमनाई कम्युनिटी का भी दिखाएगा, सो दैट आप ऑटोमेटिकली उनके साथ कनेक्ट कर पाओ। आपने किसी कंपनी में काम किया, इंटर्नशिप में काम किया, वो सजेशंस में उन लोगों का
नाम दिखाएगा जो लगभग आप ही के टाइम पे वहां पे काम कर रहे थे, ताकि आप उनके साथ कनेक्ट करो। लिंक्डइन चाहता है कि आप कनेक्ट करो। सो सजेशंस में जाइए, नेटवर्क में जाइए, लोगों के साथ कनेक्ट करना शुरू करिए। प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ, इट डज नॉट मैटर कि आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटी से हैं, टियर 1, टियर 2, टियर 3 कॉलेज से हैं, इट डज नॉट मैटर। जीरो 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 मैटर नहीं करता ये चीज। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, आप क्या काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, और किसी भी चीज पे नहीं।